Assalamu alaikum. We were discussing about the plant tissues, and in our previous lecture, we discussed about the main type of plant tissues, that is the meristematic tissue. तो आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले लेट्स हैव अ क्विक रिवाइंड ऑफ व्हाट वी हैव लर्नड टिल डेट, a quick recapitulation. So last time we learned that plant tissues are mainly of two types. And what are those two types? That is, the primary one is the meristematic tissue, and the permanent one. And also through a flow chart, we learned about the types of meristematic tissue and the formation of new cells are by the meristematic tissue through mitotic division. That is what we learned in our previous lesson. And also we learned about the nature of these meristematic cells, their functions, and their main three types, or the three types of meristematic tissue that we discussed as apical, lateral, and intercalary. We also came to know about the location and position of these various tissues, and also in what fashion they carry the functions related to growth and division. Now we will come to our next point, to our next topic, that is the permanent tissue. So our today's topic will be the permanent tissue, which is a type of plant tissues. Well, let's start our today's class. Let's start. So now we will take the permanent tissue and it can further be classified into two groups or two types of tissues, that is the simple tissue and the complex one. Simple and complex tissues. Okay. Now primarily we will be concerned with the simple tissues. तो जैसा कि हमने जब हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पढ़ा था, तो वहाँ पे भी हमने फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के पहले फंक्शंस पढ़े, उनका स्ट्रक्चर पढ़ा, फिर उनकी लोकेशन पढ़ी, इसी तरह से उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, और ख़ास तौर पे हमने एक तरह से एक पहचान बनाई कि कैसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को बाकी टिश्यूज से अलग कर सकते हैं, और बाद में जो उनके टाइप्स थे उनकी भी हमने अलग अलग तरह से फंक्शंस पढ़ी. तो इसी तरह से आज हम सिंपल टिश्यूज के बारे में जानेंगे कि ये सिंपल टिश्यूज जो है कैसे किस तरह से अपना काम अंजाम देते हैं, किस तरह से एक प्लांट में अपना रोल अदा करते हैं. सिंपल टिश्यूज. ओके. तो सबसे पहले हम एक कन्वीनियंट तरीका अपनाते हैं कि जैसे हमने फ्लो चार्ट के जरिए पिछली मर्तबा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में पढ़ा था, इस बार हम सिंपल टिश्यूज के बारे में भी उसी तरह से उसी हिसाब से पढ़ेंगे. तो सबसे पहले ये इसके सिंपल टिश्यूज के जो मेन थ्री टाइप्स हैं उनके बारे में, उनके नाम हम जानेंगे. तो पहला वाला जो है दैट इज पैरेन्काइमेट्स टिश्यू और पैरेन्काइमा. ओके.
remember the word parenchyma. And the second one, that is collenchyma, and the third one, that is Cyclenchymatous tissue or Cyclenchyma. Okay, parenchymatous tissue, collenchymatous tissue and Cyclenchymatous tissue. पहला parenchyma. इससे पहले कि हम parenchyma के बारे में कुछ जानें, तो जो पहले हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, जो हमने पिछली मर्तबा जो हमारा क्लास हुआ था उसमें पढ़ा था, तो एक क्लू दिया था मैंने आपको वहां पे, अगर आपको याद होगा, और जरूर याद होगा इंशाल्लाह, कि जब सेल्स डिवाइड हो जाती हैं, मान लीजिए एक सेल हम लेंगे, सिर्फ एक सेल या लेयर ऑफ सेल्स हम लेंगे, ओके, से दिस इज अ लेयर ऑफ सेल्स मेरिस्टेमेटिक इन नेचर और comprising the meristematic zone. Now when they get divided, what actually happens during a mitotic division? A cell divides into two halves, okay, means a cell gives rise to two cells. This, the uppermost layer of the cell, is this one, the uppermost one, it retains its nature, means it was the cell, the parent cell was meristematic in nature. Now among the two daughters, these are daughter cells, this layer will retain its meristematic nature. And what happens to these layers which are left behind? ये आगे आगे चलते जाएंगे, ये सिलसिला है, दिस इज नॉट ए सिंगल स्टेप, ये एक सिलसिला है, सिलसिलावार तरीके से ये आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे भी छोड़ रहे हैं बाकी सेल्स को. तो ये सेल्स जो है ना, ये सेल्स, ये जो पीछे रह गई, जैसे कि हमने एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक सेल्स का, कि दे आर अनडिफरेंशिएटेड, मीन्स उनमें अभी कोई मैच्योरिटी नहीं आई है. किस हिसाब से? फंक्शन के हिसाब से. वो किसी खास काम के लिए उनके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आई है, ताकि वो किसी खास मखसूस काम के लिए तैनात हो जाए. इसी तरह से तो जो प्राइमरी सेल लेयर होती है उनके बाद, वो होती है दैट इज मेड अप ऑफ द parenchymatous cells, और those cells are known as the parenchymatous cells, and the tissue is called parenchymatous tissue or parenchyma. तो अब इनकी खासियत क्या रहेगी? अब देखिए, अगर मान लीजिए एक बच्चा है, तो जब एक इन्फेंट की थोड़ी सी डेवलपमेंट होती है, तो फिर वो चाइल्ड में पहले ट्रांसफॉर्म होता है, देन ही बिकम्स एन एडल्ट और एडोलसेंट और एडल्ट व्हाटसएवर. इसी तरह से ये देखिए, ये पैरेन्काइमेट्स टिश्यू जो है, ये डायरेक्टली कहां से, थोड़ी सी डिफरेंशिएशन इसमें होती है, अभी कंप्लीट डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं ये, थोड़ा सा इसमें बदलाव हुआ है. मींस ए मिनी ट्रांसफॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस टू द these meristematic tissues, and they have now transformed into the parenchymatous tissues. Means there must be some similarities between the parenchyma and the meristematic tissue. There are similarities, but the main difference that we have to realize, that we have to remember now and forever, that is the primary difference lies in their nature of division. Means the meristematic cells keep on dividing continuously, giving rise to the new parents, these daughter cells, while as that does not happen in parenchymatous cells. जैसा मेरिस्टेमेटिक में होता था वैसा नहीं होता है. और दूसरी चीज जो हमने कही थी, जो हमने मेरिस्टेमेटिक जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था कि मैंने वर्ड यूज किया था वेरी. आप चाहें तो वो लेक्चर आप दोबारा देख सकते हैं. मैंने कहा था वेरी थिन सेल वॉल. थिन सेल वॉल और वेरी थिन सेल वॉल में क्या फर्क है?
मतलब बहुत बहुत ही ज्यादा बारीक होता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स में। और जब हम पैरेन्काइमेटस टिश्यूज की बात करते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स की बात करते हैं, इनमें भी थिन सेल वॉल होता है, लेकिन उतना थिन नहीं होता है। क्या मतलब हुआ कि अगर सेल वॉल जो है जिसका सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, तो सिंपली जब वेरी थिन सेल वॉल, जब ये बहुत ही ज्यादा पतला था, तो तब सेल्यूलोज की और कमी होती। अब थोड़ा सा सेल्यूलोज और डिपॉजिट हुआ है इसमें सेल वॉल में, तो ये भी एक तरह से एक प्राइमरी differentiation हुई है इसमें। It is a developing cell. Now the primary development that takes place in it is the thickness of relatively thicker, उससे होता है सेल वॉल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। तो थोड़ी सी इसमें ये चेंज आ गई है। लेकिन जितने भी ग्रीन पॉट्स है, जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं हमारे एक प्लांट में, उन सब में पैरेन्काइमा होता है, उन सभी में पैरेन्काइमा होता है। और जब ये सेल्स विच आर यूजुअली पॉलीहेड्रल इन शेप, तो जब ये एक दूसरे के साथ, मान लीजिए मैं एक ओवल सेल यहाँ पे बनाता हूँ आसानी के लिए समझाने के लिए। अगर ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, ये चौथी सेल है, तो ये जो स्पेस है जिसको हमने साहब का लेसन में भी थोड़ा सा इसका जिक्र किया था, ये इंटरसेलुलर स्पेस होती है, इंटरसेलुलर स्पेस होती है, बिल्कुल खाली जगह यहाँ पे इसमें सेल्स के दरमियान जो गैप होती है, वो आप जो हायर क्लास में भी इंशाल्लाह मैट्रिक्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, व्हाट दे आर फिल्ड विद। इसका बड़ा रोल है पैरेन्काइमेटस सेल्स में। क्यों? क्योंकि आगे जाके हमें कोलोनकाइमा भी पढ़ना है, तो उसके बाद हमें ये सिक्लोनकाइमा भी पढ़ना है। लेकिन पहले हम पैरेन्काइमा पे थोड़ा सा फोकस करेंगे कि इसमें जो इंटरसेल्यूलर स्पेस होती है वो ज्यादा क्यों होती है। तो मैं आपको सीधे तौर पे इनकी फंक्शंस के बारे में जब पढ़ाऊंगा तो आपको खुद समझ में आएगा कि ये इंटरसेल्यूलर स्पेस क्यों इनमें ज्यादा थी, फॉर व्हाट रीजन the intercellular space in the parenchymatous tissues is more than that of the collenchyma and the sclerenchyma tissue। पहली बात, जब हम पैरेन्काइमा टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं, पैरेन्काइमा, तो इसके फर्दर हम दो टाइप्स जो है ना लेते हैं एज पर देयर फंक्शन। द वन इज एनकाइमा, एनकाइमा written as arenchyma, okay, and the second one is colorenchyma, colorenchyma. Now as the name suggests, arenchyma related to air, okay, and the colorenchyma, coloro means green, एरेन्काइमा क्या होते हैं और क्लोरेन्काइमा क्या होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है ना, वो जाके क्या बनते हैं, उनकी वो वाली लेयर्स जो पीछे रह जाती हैं, प्राइमरी लेयर्स, दैट टर्न इनटू और दैट दोज ट्रांसफॉर्म इनटू पैरेन्काइमा। और पैरेन्काइमा भी में भी अगर ऐसी स्पेशलाइजेशन हो जाए, मैंने कहा कि दीज आर लीस्ट डिफरेंशिएटेड और लीस्ट स्पेशलाइज्ड सेल्स, लीस्ट स्पेशलाइज्ड as compared to the collenchyma and the sclerenchyma. These are the least specialized cells, and if this specialization is for the purpose of providing buoyancy to the plant. What does buoyancy mean? buoyancy एक हमारा चैप्टर भी है फिजिक्स में। तो वो जो एक टेंडेंसी होती है किसी भी चीज को टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ताकि वो डूब न जाए, यानी डूबने के खिलाफ। जैसे हमने 8th में फ्रिक्शन पढ़ा था, तो हमें हमारी मोशन के खिलाफ वहां पे जो फोर्स एक्ट कर रहा था फ्रिक्शन, तो इसी तरह से जो बुयांसी है ये चीजों को क्या रखती है, वाटर के सरफेस के ऊपर रखती है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो सरफेस एरिया ज्यादा। तो सरफेस एरिया कब ज्यादा होगा, जब सेल्स में गैप होगी, ओके।
अगर आपको लास्ट वाला लेक्चर अच्छी तरह से याद होगा, तो जब मैंने लोकोमोशन, मूवमेंट और लोकोमोशन की बात की थी, तो मैंने आपको वहां पे एक और चीज बताया था कि ये जो एनिमल्स है, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड प्लांट्स आर फिक्स्ड। लेकिन खास तौर पे मैंने वहां पे एक चीज का जिक्र किया था कि तमाम प्लांट जो है ना, तमाम प्लांट स्पीशीज वो फिक्स्ड नहीं होते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा चलने वाला अगर कोई स्पीशीज है पूरे अपने लाइफ टाइम में, तो वो प्लांट स्पीशीज ही है। तो जिन प्लांट्स को इस बयांसी की जरूरत होती है टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, तो उनके पार्ट्स में, उनके वेजिटेटिव पार्ट्स में क्या होता है कि ये पैरेन्काइमा टिश्यूज जो है ना, ये और ज्यादा स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस डेवलप करते हैं सेल्स के दरमियान, in between the cells, okay, and what happens, that space is filled with air, that space is filled with air to support its buoyancy, ताकि ये तैर सके, एक जगह से दूसरी जगह जा सके, सर्वाइव कर सके। इनके पास रूट्स नहीं होते हैं, इन प्लांट्स के पास तो राइजोइड्स होते हैं, ओके। एंड देन द सेकंड वन इज क्लोरेन्काइमा। तो जितने भी प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, क्लोरो मीन्स ग्रीन, दे कैरी फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है क्लोरोप्लास्ट्स, और क्लोरोप्लास्ट्स में क्या होता है, एक खास तरह का पिगमेंट होता है, दैट इज नोन एज क्लोरोफिल। फिर उसके भी टाइप्स हैं बहुत सारे, ठीक है ना। तो पिगमेंट्स भी बहुत सारे किस्म अकसाम के हैं, वो भी हमने कवर करने हैं बाकी चैप्टर्स में। सो दैट इज नॉट आवर टॉपिक टुडे, वी विल स्टडी इन डेप्थ अबाउट देम। तो वो फोटोसिंथेसिस कैरी करने के लिए क्लोरोप्लास्ट्स या क्लोरोफिल वगैरह, तो वो ग्रीन पिगमेंट्स वगैरह, तो ये पैरेन्काइमेट सेल्स ही है जो कि डिफरेंशिएट होके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है उसको अंजाम देते हैं। तो ये बात आपको जहन में रखनी है। सो दे आर पैरेन्काइमेट्स इन नेचर, the tissues, the cells, the portion of the plant responsible for the photosynthesis, that they are made up of the parenchymatous tissues. तो ये दो टाइप्स हो गए, एनकाइमा एंड क्लोनकाइमा। तो किस बुनियाद पे हो गए, किस बुनियाद पे हो गए, तो हमें ये भी बात समझ में आ गई कि कुछ तो है, कुछ तो है जिसके लिए इनकी ये इंटरसेलुलर स्पेस मेंटेन करना जरूरी है। और दूसरा रीजन क्या है कि इनकी प्राइमरी फंक्शंस में और एक फंक्शन आती है, एंड व्हाट इज दैट, दैट इज द स्टोरेज, ओके, स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर। जैसा कि हमारी बॉडी में भी फूड स्टोर होता है, फैट स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, तो इसी तरह से प्लांट्स में जो स्टेरॉइड होती है, दैट इज कैरीड बाय द पैरेन्काइमेटस टिश्यू। Collenchyma and sclerenchyma have nothing to do with that. They are carried by these parenchymatous tissues, storage of food and water. And also one more thing, ये आप जहन में रखिएगा कि Nehemiah Grew was an English botanist. Also, he had discovered these parenchymatous tissues, parenchymatous cells, and he also coined them. तो नाम भी उन्होंने ये रखा, parenchymates। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि हमने इनके फंक्शंस पढ़े कि ये एक तो फूड स्टोरेज में मदद देते हैं, दूसरा ये वेजिटेटिव पार्ट्स में जो फोटोसिंथेसिस होती है ग्रीन पार्ट्स में उसमें भी मदद देते हैं, तीसरा ये एनकाइमस जो उनका खास ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, तो वो बयांसी क्रिएट करने में भी मदद देते हैं, एक प्लांट को फ्लोट करने में भी मदद देते हैं। जिनको फ्लोट करना होता है, जिनको नहीं करना होता है, उनको वो मदद की ज़रूरत ही नहीं है, तो लेना भी नहीं चाहेंगे। और उसके बाद जो है ना,
हाँ, सेल वॉल के बारे में हमने पढ़ा कि इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ओके। एंड वो दूसरा पॉइंट पढ़ा हमने कि जो सेल वॉल है इट इज थिन। मेरिस्टेमेटिक में हमने क्या पढ़ा था कि इट इज वेरी थिन। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि सेल वॉल इज थिन। और एक और फंक्शन है इनकी, जैसे कि स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर है, वैसे है कि जैसे हमने उनमें मेरिस्टेमेटिक में पढ़ा था ना कि दे आर द हीलर्स ऑफ द प्लांट, दे हील द वुंड्स एंड द इंजरीज। तो इनमें भी जो है ना ये रिपेयरमेंट कहीं पे भी ज़रूरत हो, रिपेयरमेंट ऑफ टिश्यूज वगैरह, तो उसमें भी ये जो है ना, क्योंकि ये लीस्ट डिफरेंशिएटेड होते हैं, इनमें अभी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं हुई होती है, तो ये भी उस टाइम पे मदद देते हैं इन द रिपेयरमेंट ऑफ द डैमेज्ड टिश्यूज और द इंजर्ड टिश्यूज और द वुंड्स ऑफ ए प्लांट। Okay, now we will move to the next one, that is the parenchyma and then is the collenchyma. हमने इसी हिसाब से लिया था कोलेनकाइमा, ओके। कोलेनकाइमा। अब ये कोलेनकाइमा पे हम आएंगे। जैसा कि पैरेन्काइमेट सेल्स में हमने कहा कि ये जो लेयर्स पीछे रह गई थी, ठीक है ना, कहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो गई थी, पैरेन्काइमेट टिश्यूज में, ठीक है ना। तो इसी तरह से कोलेनकाइमा इट इज मोर डिफरेंशिएटेड वन। अब इसमें और ज्यादा जो है ना कुछ बेहतरी आई है, इसमें कुछ और ज्यादा चेंज, कुछ ऐसी चेंजेस आई है कि इनकी फंक्शंस जो है दे हैव नाउ बिकम मोर स्पेशलाइज्ड देन दैट ऑफ द पैरेन्काइमेट टिश्यूज। तो क्या होता है इनमें, इंशाल्लाह जो हायर क्लास है वहाँ पे आप पढ़ेंगे कि कैसे प्रोकैम्बियम क्या होता है, फिर वहाँ से इनका ओरिजिनेट कैसे होता है कोलेनकाइमा का वगैरह, तो वो सब चीज़ें आप इंशाल्लाह हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा प्राइमरी कंसर्न है कि किस तरह से हम पहले हम पैरेन्काइमा से तो इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहेंगे ना कि क्या फ़र्क है, आखिर क्या है कि पैरेन्काइमा, उनको हम पैरेन्काइमा कहते हैं और उनको कोलेनकाइमा कहते हैं। कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ तो डिफरेंस होनी चाहिए। और पहली जो मैंने यहाँ पे जो पॉइंट बोला था कि दे हैव थिन सेल वॉल, थिन होता है, सेल वॉल होता है, थिन होता है। और दूसरा मैंने बोला था कि ये सेल्यूलोज का मेड, इट इज मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज। यहाँ पे थोड़ी सी इनमें डिफरेंस कहाँ पे है कि अगर हम फॉर एग्जांपल 2 सेल्स बनाएंगे, 3 सेल्स बनाएंगे, ठीक है ना, ये सेल वॉल हम मान के चलते हैं। अब देखिए अगर मैं सेल वॉल को यहाँ पे थोड़ा सा मोटा करूं, यहाँ पे तो यहाँ पे कून्स में जो इसके ये कून शेप जैसी बनाएंगे यहाँ पे कॉर्नर्स पे, तो ये कॉर्नर्स अगर मोटे हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, इससे जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो तो डिक्रीज हो जाएगी, मींस दे हैव less intercellular space as compared to the parenchymatous tissue. This becomes our first difference to differentiate between the parenchyma and the collenchyma, these collenchyma cells. The primary difference is that इनका सेल वॉल तो बिल्कुल हर जगह बराबर इसमें थिकनेस में था, लेकिन इनका क्या है, कॉर्नर्स पे मोटा और बीच में पतला, तो means it is irregular, it is not composed throughoutly of the same width or the thickness. तो इसमें थिकनेस में चेंज आ गई, ये कॉर्नर्स पे डिपॉजिट क्या हुआ ऐसा कि ये कॉर्नर्स पे मोटापन आ गया इसमें, एंड दैट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन नोन एज पैक्टिन, ओके, पैक्टिन। एंड द सेल वॉल ऑफ दीज कोलेनकाइमेट सेल्स इज मेड अप ऑफ हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन, ओके। तो पैक्टिन कहाँ पे होता है, ये कॉर्नर्स पे, ये एक तो इसने यहाँ पे शेप ही चेंज की सेल की, ठीक है ना, एक तो शेप चेंज की और दूसरा इंटरसेलुलर स्पेस जो है ना वो कम की, और तीसरा जो है ना ये पैक्टिन ये थोड़ा सा हार्ड होता है एज कंपेयर्ड टू द पैरेन्काइमेटस वॉल, थोड़ी सी हार्डनेस इसमें आ गई।
तो फंक्शन क्या है इनकी, आप हम फंक्शन पे डायरेक्टली आएंगे। तो एक तो ये कम्पैक्ट है, रिलेटिवली कम्पैक्ट एज कंपेयर टू द पैरेन्काइमेटस वंस। अब इनकी क्या फंक्शन है कि आपने देखा होगा कि किसी चीज को अगर हम, मिसाल के तौर पर ये मेरे हाथ में मार्कर है, अगर मैं इसको तोड़ना चाहूं तो ये बेंड नहीं हो जाएगा, सीधा टूट जाएगा, ठीक है ना। बेंड करना चाहूं टूट जाएगा लेकिन बेंड नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से हम उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं कि अगर कोई चीज, अगर हम उसको मोड़ना चाहें, मरोड़ना चाहें और तोड़ना चाहे, वो बेंड तो हो जाएगा, इट विल टेक बेंड टू अ सर्टेन एंगल, बट इट विल नॉट बी ब्रोकन इनटू द पीसेस, उसमें रिजिडिटी नहीं होगी। तो उसमें क्या होगी, दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी, और हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है ना। तो ये दैट फ्लेक्सिबिलिटी टू ए प्लांट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, स्पेशली व्हेन a harm is along। जैसे कोई तूफान आया, विंड आई कोई, तो प्लांट तो बेंड हो जाएगा, प्लांट के पार्ट्स बहुत सारे जो है ना बेंड तो हो जाएंगे लेकिन टूट के गिरेंगे नहीं। इसी तरह से जब हम when we pick up this when we carry the task of picking the apples, तो उसमें उस वक्त भी हम एक सेब जो है ना तोड़ना चाहते हैं उस टहनी से, लेकिन टूट नहीं जाता है। क्यों? उसमें जो कनेक्शन होता है किसके साथ, ब्रांच के साथ, तो उसका कनेक्शन होता है सेब का, ठीक है ना। तो वो सॉफ्ट टिश्यू का ऐसे सॉफ्ट टिश्यू का बना हुआ होता है जिसमें इलास्टिसिटी होती है। तो एक जगह उसमें ऐसी होती है जहां से वो टूट जाता है। और इसी तरह से हम देखें कि पत्ता हम तोड़ना चाहें, इसीलिए पत्ते ज्यादा गिरते भी नहीं है प्लांट्स के, कि उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। या इस वो कुछ जान क्रूरी मार आसान चुतरफी या तुम जन तो चारों तरफ हम उनको घुमा 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 के भी तोड़ना चाहें तो नहीं टूटते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो है ना कोलनकाइमेटस टिश्यू होता है ज्यादा कंसंट्रेशन में मौजूद वहां पे, तो वो उनको तोड़ने नहीं देता है, टूटने नहीं देता है। तो वो जो है ना तोड़ का सिलसिला, मरोड़ का सिलसिला वगैरह, तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी वहां पे जो है ना उसको कवर अप करके उस चीज से बचाते हैं, फिजिकल हार्म से बचाते हैं, गिरने से बचाते हैं, तोड़ने से, टूटने से बचाते हैं। तो ये हो गया सेल वॉल, यानी ये सिर्फ किस बुनियाद पे हुआ कि दीज आर द मॉडिफिकेशंस इन द सेल वॉल और इन द शेप ऑफ द सेल वॉल और इन द nature of the cell wall, the material of which it is composed, that is the pectin and the semicellulose, as compared to the parenchymatous cells which we have already studied about. तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वहां पे हमने पढ़ा था फंक्शंस के हिसाब से कि वेजिटेटिव पार्ट्स में ये कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो हमने कहा था कि ये जो ना लीव्स में होती है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। दो तीन चीजें वहां पे मैं भूल भी गया था कि पिथ वगैरह, पिथ ऑफ द स्टेम, तो इसी तरह से पेट्यूल ऑफ द लीव, तो वहाँ पे ये और सॉफ्ट टिश्यूज जो होते हैं, सॉफ्ट पार्ट ऑफ द फ्रूट वगैरह, तो वहाँ पे पैरेन्काइमेट टिश्यू होता है। तो कोलनकाइमा कहाँ पे होगा फिर? कोलनकाइमा हर उस जगह पे होगा जहाँ पे प्लांट को इलास्टिसिटी मिल रही है। माने कि हम जा रहे हैं कहीं से, अगर ऐसे मतलब अत लोग कुछ प्लांट सतन, ठीक है ना, तो प्लांट टूटा नहीं, बेंड हो गया, तो वो जहाँ पे बेंड हो जाएगा, जहाँ जहाँ से वो बेंड हो सकता है, वहाँ पे आप सीधे याद रखिए कि वहाँ पे कोलनकाइमा टिश्यू है और कोलनकाइमेट सेल्स है। तो these collenchyma were actually discovered by Sheldon about 1805, about in 1805। तो आपने वो भी शायद 8th क्लास में आपने पढ़ा था कि कैसे 1660 में, ऑलमोस्ट 1660 में परहैप्स, हाँ, तो वो जो कॉक वगैरह सेल्स देखे थे रॉबर्ट हुक ने, तो उन्होंने डिस्कवर किया था कि दीज आर द सम स्ट्रक्चर्स आई हैव सीन अंडर द सिंपल माइक्रोस्कोप। तो वो उनको हम उनमें बाद में
कंपार्टमेंट्स के रिजम्बलेंस की बुनियाद पे उनकी शेप की, तो उनको सेल्स बाद में नाम रखा गया। तो ये कोलनकाइमा सेल्स जो है ना, टाइप्स ऑफ सेल्स और कोलनकाइमा टिश्यूज, तो इनको डिस्कवर करने वाला कौन है? चिल्ड्रन है। तो ये भी कभी एक ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, वो भी हायर क्लास में, अभी 9th स्टैंडर्ड में इतना नहीं डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो हमारा तीसरा हिस्सा होगा इसका सिंपल टिश्यू का, दैट इज द स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू और स्क्लेरेन्काइमा। ओके, तो अब हमने देखा कि पहले पैरेन्काइमा हमने पढ़ा, उसके बाद कोलनकाइमा पढ़ा। तो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि कोलनकाइमा सेल्स जो है ना, दे आर एलोंगेटेड, वो थोड़े से एलोंगेटेड होते हैं एज कम्पेयर टू व्हाट पैरेन्काइमा सेल्स। तो स्क्लेरेन्काइमा उनसे भी ज़्यादा एलोंगेटेड होते हैं और थोड़ा सा ये फाइबर की शक्ल में होते हैं। दीज आर लॉन्ग एलोंगेटेड सेल्स इन द शेप ऑफ फाइबर्स, fiber like structures, actually they are not fibers, okay, long elongated होते हैं। अगर हम माने ऐसे थोड़ा थोड़ा इनको ऐसे ऐसे करके, तो बाद में जो है ना इनका जितना हम ऊपर जाते हैं तो साइज जो है ना इनका चेंज होता है, यहाँ एलोंगेशन जो है ना, लेंथ इनकी सेल्स की वो कम होती जाती है। तो फंक्शन के हिसाब पे इनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमने वहाँ पे पढ़ा कि सेल वॉल थिन, वेरी थिन होता है। उसके बाद हमने कहा कि सेल वॉल जो है ना थिन होता है, किन में? पैरेन्काइमेट्स में। उसके बाद हमने कहा कोलनकाइमा में कि रिलेटिवली थिकर होता है, किन से? इनसे पैरेन्काइमा से थिकर होता है। तो स्क्लेरेन्काइमा में उनसे भी ज़्यादा थिक होता है। तो थिकेस्ट among all these types we have learned so far means thicker than coloncyma, and that is thicker than parenchyma, and that is thicker than the meristematic cells. Okay, तो ये थिक होता जा रहा है। तो अब इतना थिक है कि इंटरसेलुलर स्पेस भी बीच में नहीं है। वो थिकनेस की वजह से नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस होती ही नहीं है, बिल्कुल कम्पैक्ट सेल्स होते हैं। तो अगर आपको केमिस्ट्री का वो चैप्टर याद होगा, व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, एंड वी देयर डिस्कस्ड द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इन द सॉलिड्स इज लीस्ट एंड इट इज मोर इन द लिक्विड्स एंड मोस्ट इन द गैसेस। तो वहां पे हमें क्या पता चला था बाद में कि रिजिडिटी जो है सॉलिड्स की, दैट रिजिडिटी that is caused due to this type of compactness, means they are densely packed, and due to that very property of the solids they are rigid or hard in shape. Okay, तो यहाँ पे भी जब सेल वॉल भी बहुत थिक है, बहुत थिक जब होगा, अभी हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी और पढ़ेंगे सेल वॉल के। तो जब यहाँ पे कंपैक्टली सेल्स भी पैक्ड है, बहुत ही ज्यादा कंपैक्टली सेल्स पैक्ड है, इंटरसेलुलर स्पेस की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो क्या होता है कि इससे रिजिडिटी आ जाती है, या हम यहाँ पे स्टिफनेस कहेंगे। ओके, स्टिफनेस, हार्डनेस, सिंपली हार्डनेस आप याद रखिए कि बहुत सख्ती आ जाती है इसमें ना, कोई चीज जो है ना आसानी से टूटती नहीं है, तो उसको हम कहते हैं कि ये हार्ड है। ठीक है ना, अगर कोई चीज जो है ना थोड़ा सा अपने शेप में भी उसको हम थोड़ा मतलब जो है ना कंप्रेस कर सकते हैं, जिसमें थोड़ी सी ये कंप्रेसिबिलिटी होती, तो उसको हम कहते हैं ये सॉफ्ट है। तो इनमें कंप्रेसिबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं होती है, तो हार्डनेस इन दिस टाइप ऑफ टिश्यूज देयर इज हार्डनेस। तो किस वजह से हुई? ड्यू टू द लैक ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस। और इसमें जो खास चीज है स्क्लेरेन्काइमा में, जो उनको बाकी सेल से डिफरेंशिएट करता है, दैट इज दैट देयर सेल वॉल एक तो थिक है, दूसरा कि इट इज लिग्निफाइड। व्हाट डज लिग्निफिकेशन मीन? लिग्निफिकेशन मीन्स प्रोटीन लिग्निन जो है ना, बहुत हार्ड सब्सटेंस, ये इनमें मौजूद होता है सेल वॉल में। तो इसकी वजह से इनका सेल वॉल चूंकि बहुत हार्ड होता है, और इनकी जो है ना इंटरसेलुलर स्पेस की यहाँ पर कोई गुंजाइश भी नहीं है, सेल वॉल भी बहुत ज्यादा हार्ड है, तो ये टिश्यू ही हार्ड बन जाएगा। तो अब हार्डनेस किस पे डिपेंड होती है कि एक तो ऑलरेडी इनके टिश्यूज में इनके सेल्स में सेलुलोज तो होगा ही,
सेल्यूलोज के अलावा जो परसेंटेज ऑफ लिग्निन है, अगर वो 15 से 25% होगी मिसाल के तौर पे, तो एक अलग तरह की हार्डनेस होगी। और अगर वो 25 से 40% है फॉर एग्जांपल, तो ज्यादा हार्ड, तो जितना द मोर द कंसंट्रेशन ऑफ द लिग्निन इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज और द स्क्लेरेन्काइमा सेल्स, द मोर हार्डर इट विल बी, द मोस्ट स्टिफनेस इट विल कैरी। ओके, तो जितना जितना उसमें लिग्निन की कंसंट्रेशन होगी उतना हार्ड होगा। जैसा कि हम बदमता मिसाल कि ये क्या एक्चुअली प्रेजेंट कहाँ पे होता है, तो ये जो जैसे हम जो आउटर कवरिंग ऑफ दिस फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह होती है, या इनर जो होता है ना, यथ ٲंٹ वनान, ओलचि मज ٲंट आसान, ٲरस मज ٲंट आसान, अम्बस मज ٲंट आसान, मैंगो का जो बीच वाला पोर्शन होता है, या हम अखरोट की ग्राउंड इसकी जो हमारा कॉमन नट होता है, अखरोट की मिसाल हम लेंगे। अखरोट का जो आउटर कवरिंग होती है शेल्स, या तो कंड वनान, कितनी हार्ड होती है, लेकिन उस हार्डनेस में भी देखो कि कागजी डोन, ठीक है ना, और को कागजी डोन आराम सान फटान, क्यों? क्योंकि वहां पे लिग्निन की कंसंट्रेशन जो थी ना वो कम थी, और मतलब मॉडरेट, जिसको हम दांत से भी तोड़ सकते हैं, तो वहां पे मॉडरेट कंसंट्रेशन ऑफ लिग्निन थी। और एक होता है बहुत ही ज्यादा हार्ड, या वोट डोन या कचुल, तो वो टूटता नहीं है, ये दिमाग कंधा बिक्स नश वातान, पत् पे तौर गसन, और जब वो टूटता भी है तो उसमें से जो गिरियां निकल आती हैं हमारी, जो उसका न्यूक्लियस होता है अंदर से गूज तम मज कड़ान, सह पे खेल लायक कहें। तो इसी तरह से अगर हम देखेंगे कि